Good evening, students. We are going to continue our the lecture number 7 today of the same topic, gravitations. We already completed the 6th lecture. Now today we have to discuss about the lecture number 7. Let me discuss what we have to learn in this same this topic. Now here about the you have to introduction about the escape velocity. Escape velocity means those objects when they are escaped from that Earth magnetic field, Earth gravitational field. That velocity we have to discuss. That is, that velocity will be v. We are considering as vc equals to in root of 2 gr. This will be the velocity. How it will be the equations will be going to prove. I will explain that one also. Don't worry. Derivation of how the we are going to verify the derivations. How the equations are coming. How I written here root 2 gr. That one also we have to discuss. The derivations is basically depends upon the kinetic energy equals to it depends upon the law of conservation of energy. It basically depends upon law of conservation of energy. You know the law. What is the law of conservation of energy? Energy is neither be created, no, but it can be converted one form to the another form. The same law we have to utilize here, and the potential energy is going to convert in kinetic energy, and the sum of that energy will be the zero. According to that concepts, we are able to prove that that escape velocity VE. Here we are writing VE. VC is known as critical velocity. Okay, VC is the critical. In that velocity, the objects are revolving in a circular orbit. VE is known as escape. Escape means निकल जाना है, पीछा छूट जाना है उसका. Known as a VE. V is a root 2 gr. Okay, and then value of escape velocity of the Earth. What is the value of that Earth? Is around 11.2 kilometer per second. This is the value. We are going to derive what will be the value. Means इतने जोर से आप एक ऑब्जेक्ट को फेंकोगे, कितने जोर से? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. एक सेकंड में आपका ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना कवर करता है? 11.2 किलोमीटर जाता है. तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा आपके अर्थ फील्ड से बाहर निकल जाएगा. That is known as escape velocity. And few examples related to the escape velocity. That one also we have to learn today. Understood what you have to learn today? Good. Now, actually, if you are finding the picture here, now here rocket is launching from from the surface. Then it is moving. It is going and is except from that the Earth magnetic field. Earth के gravitation field के क्या जा रहा है? बाहर निकल जा रहा है. तो इसका मतलब इसकी velocity क्या होगी तुम्हारी? More than 11.2 किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पे डिस्टेंस फ्रॉम मास m है ना. यहाँ पे रॉकेट के दिया है ना अर्थ. यहाँ पे कैसे सैटेलाइट लॉन्च के समय क्या कर दिया अपने? सैटेलाइट दिया है. लॉन्च के समय क्या है तुम्हारी इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? वो एक्सेप्ट हो जाएगा, निकल जाएंगे अर्थ. आज कम होगा तो क्या करेंगे? फिर गिर जाएंगे अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड पे. बराबर एग्जैक्ट स्पीड होगी तो वो घूमेगा क्रिटिकल वेलोसिटी से. ज़्यादा होती है तो निकल जाएगा. तो अपना काम क्या होता है जब सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो वेलोसिटी एग्जैक्ट मेंटेन करना पड़ता है. क्रिटिकल वेलोसिटी बोलते हैं. इसलिए बोलते जियो स्टेशनरी. अर्थ के सामने क्या होना चाहिए? सैटेलाइट तुम्हारा स्टेशनरी होना चाहिए अर्थ के सामने, है ना. जैसे कि इंडिया अपना है, इंडिया के सामने सैटेलाइट स्टेशन, इंडिया जाता है यहाँ पे तो सैटेलाइट भी इंडिया के साथ में घूमना चाहिए. उससे क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी. आप लोगों को लगेगा कि सैटेलाइट स्टेशनरी है. इसका मतलब अर्थ का टाइम पीरियड 24 आवर्स है तो सैटेलाइट का भी टाइम पीरियड कितना होना चाहिए? 24 आवर्स. हमेशा इंडिया के सामने वो सैटेलाइट का ध्यान होना चाहिए. उसे बोलते जियो स्टेशनरी. उसे बोलते क्रिटिकल वेलोसिटी. वो वेलोसिटी में घूम रहा है तो उसे क्या कहेंगे अपन? क्रिटिकल वेलोसिटी. ओके, अपना क्रिटिकल वेलोसिटी अपन ऑलरेडी देख चुके हैं. अभी क्या देखना है आपको? एस्केप वेलोसिटी, यानी जो सैटेलाइट वहाँ से निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, वो देखना है अपने को. ओके, नाउ व्हाट इज द एस्केप वेलोसिटी? अभी बताया मैंने. एस्केप वेलोसिटी क्या है? इट इज द व्हेन द सैटेलाइट्स इज behind when we are moving, is the greater velocity than the critical velocity. Critical velocity ज़्यादा होती है और वो कंडीशन में क्या होता है? सैटेलाइट तुम्हारा ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर होता है. और वो क्या है तुम्हारी? एस्केप वेलोसिटी, है ना. दैट वेलोसिटी सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं अपन. सैटेलाइट कौन से इसमें लॉन्च कर रहे हैं अपन? ये ऑर्बिट में. इसी क्या कहें अपन? VC. इसी क्या कहोगे आप? VC. VC की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी? रूट GR. इसकी वैल्यू कितनी होती है? रूट GR. और V क्या है तुम्हारा? इसकी 2 GR. ये एडिशनल फैक्टर है, रूट 2 GR. यहाँ पे इसकी स्पीड इससे ज़्यादा होता है तो सैटेलाइट तुम्हारा इसके फील्ड के बाहर निकलेगा. अप्रॉक्सीमेटली कितनी होगी स्पीड उसकी? 11 किलोमीटर पर सेकंड. इतनी स्पीड होती है तो सैटेलाइट तुम्हारा उसके मैग्नेटिक अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बाहर
निकल जाएगा, घूमेगा, अर्थ के अराउंड घूमेगा नहीं, वो उसे क्या होगा अपन एस्केप वेलोसिटी। समझ में आ गया व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी? गुड। नाउ हियर डेरिवेशंस ऑफ द एस्केप वेलोसिटी, इसका डिराइव कैसा करोगे? अभी मैंने बताया इट इज वी आर एबल टू डिराइव विद द हेल्प ऑफ दैट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी का लॉ क्या है? द एनर्जी cannot be created and cannot be destroyed, but we can convert one form to the another form, and total universal of energy is to be the conserved. So हमेशा पूरी एनर्जी क्या है? कॉन्जर्व है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अपन निकाले, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है तुम्हारी? mgh। हाँ अपन निकाले, याद है, डायरेक्ट भी लिख सकता था मैं, लेकिन मैंने क्यों लिखा कि आपको रिलेशन समझ में आना चाहिए। तो जी की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पे क्या है देखो, जी कितना है तुम्हारा? gm/r², और दैट इज h, that h is nearly equal to r because of is near to surface of the earth। h का डिस्टेंस क्या कंपेरेटिवली बहुत कम होता है। तो ये कैसा आएगा तुम्हारा? ये वैल्यू क्या है? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी आपकी? gm/r है ना। और पोटेंशियल का साइन क्या होता है? हमेशा नेगेटिव। ये आपने ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, आपको शायद पता होगा, मेरे ख्याल से याद होगा। पता है क्या नहीं? चलो कोई बात नहीं, इसको देंगे अपन इक्वेशन नंबर 1। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है पता है क्या आपको? क्या होती है काइनेटिक एनर्जी? बोलिए। वेरी गुड, 1/2 mv²। अभी क्या बताया था आपने? तो दोनों एनर्जी क्या होती है तुम्हारे? सेम होते हैं, कॉन्जर्व होते हैं। दोनों की एडिशन क्या होगी तुम्हारी? 0 है ना। टोटल एनर्जी क्या होगी? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी द 0, दैट इज टोटल। फिर यहाँ पे क्या है तुम्हारा? देखो, द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितना है तुम्हारा? 0 है ना। तो ऐसा मैं करता होगा सपोज, तो फिर क्या हो जाएगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना है तुम्हारा? देखो 1/2 mv² माइनस gm/r इक्वल्स टू कितना है? 0 है, बराबर। ये काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है तुम्हारी? पोटेंशियल। तो यहाँ पे उधर जाने के बाद में क्या हो जाएगा? तो 1/2 mv² इक्वल्स टू gmm/r। तो ये m के साथ ये m क्या हो गया तुम्हारा? कैंसिल हो गया है। तो v² कितना आ गया तुम्हारा? gm/r, और फैक्टर डिवाइड में 2 था, यहाँ पे क्या जाएगा तुम्हारा? मल्टीप्लिकेशन में जाएगा है, बराबर है। तो v² कितना आ गया आपका? gm, मैं ऐसा लिखता हूँ उसको, 2 gm/r, बराबर है। अब क्या करता हूँ, मुझे वैल्यू की g की वैल्यू पता है। g क्या है तुम्हारा? gm/r² है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से इसको r से मल्टीप्लाई करता हूँ और r से डिवाइड करता हूँ। कुछ फर्क पड़ेगा क्या? r से मल्टीप्लाई करा और r से क्या करा मैंने? डिवाइड किया। तो फिर ये वैल्यू क्या बन गई? देखो अभी इसको मैं इधर लिखता हूँ, है ना। तो v² क्या बन गया? 2 gm/r डिवाइडेड बाय r², सही है। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, इसको क्या करता हूँ मैं, ये जो है ना वैल्यू gm/r² को, इसको स्मॉल g लिख सकता हूँ क्या मैं? स्मॉल g की वैल्यू कितनी है? gm/r²। इसको क्या लिखता है मैं? 2 gm/r²। तो v² क्या हो गया मेरा? v² इक्वल्स टू 2 gr। तो v कितना आएगा मेरा? √2 gr, समझे। तो ये क्या होगी तुम्हारी? वैल्यू ऑफ √2 gr। समझ में आया क्या इक्वेशन कैसा है वो? कैसा डिराइव कर, समझ में आया क्या? इज डिफिकल्ट इन दैट? सिंपल, बहुत सिंपल है देखो, है ना। तो क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपको कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, और जो एनर्जी आएगी, ये एनर्जी क्या होगी तुम्हारी? वीई, एक्सेप्ट वेलोसिटी। ये वेलोसिटी पे तुम्हारा पार्टिकल क्या हो जाएगा? तुम्हारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भाग जाएगा। गॉट इट? तो अभी इसके बाद में क्या करना है आपको? वैल्यूज निकालना है शायद, मेरे ख्याल से उसकी, है ना। तो यहाँ पे क्या करना है आपकी? यहाँ पे वैल्यूज ऑफ एस्केप वेलोसिटी यहाँ पे दिया है ना। कि डिराइव करने के लिए अपन पेज दिया था, तो अपन यहाँ पे ऑलरेडी डिराइव कर दिए। तो यहाँ पे इसकी मेरे ख्याल से इसकी ज़रूरत नहीं है। समझा आपको? समझा ना आपको? देखिए नहीं गया है ये, डिलीट, राइट, ओके। हाँ, तो अभी देखिए जो आपने वैल्यूज बताया था, देखो क्या है? एस्केप वेलोसिटी है ना, जो वैल्यूज है आपकी v को 2 gm/r। तो मैंने इसको लिखने का तरीका बदल दिया था। तो मैंने क्या करा था? इसको मल्टीप्लाइड बाय r करा, डिवाइड बाय करा था। तो कैसा हो गया? v इक्वल्स टू 2 gm/r², और इसको क्या लिखा था मैंने? स्मॉल g। तो v क्या होता तुम्हारा? 2 gr, ऐसा हुआ था, बराबर है। मैंने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि मुझे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने की थोड़ा इजी जाए। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू मुझे पता है ना।
तो यहाँ पे मुझे करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटी की वैल्यू डालना पड़ेगा, बराबर है। यम मास ऑफ द अर्थ डालना पड़ेगा, आर क्या है रेडियस ऑफ द अर्थ डालना पड़ेगा, तब वैल्यू निकालना पड़ेगा। पर मुझे अपन इसके पहले भी कैलकुलेट करिए, जी की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली ऑन द अर्थ कितना आता है, 9.8 आता है ना, अप्रॉक्सीमेटली। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है तुम्हारा 6400 किलोमीटर, है ना। जब आप इसमें रखोगे वी ई इक्वल्स टू इन रूट ऑफ 2 इंटू 9.8 इंटू 6400 इंटू 10⁻³ तो इसको आप निकालते होगे, सपोज इसको आप इक्वेशन को आप सॉल्व करते हो तो आपको इसकी वैल्यू कितनी आएगी आपकी 11 पॉइंट, चलो 11 पॉइंट में लिखता, 2 नहीं लिखता हूँ मैं, 212 मीटर ये आएगी। कितना आएगी 1200 मीटर। किलोमीटर में करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करना, डिवाइड बाय 1000, तो फिर कितना हो गया तुम्हारा, देयरफॉर वी ई इक्वल्स टू 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ऐसे लिखेगी, समझे, किलोमीटर पर सेकंड। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएंगी 11.2 मीटर पर सेकंड, 11.2 किलोमीटर। यहाँ पे यस दिखा रहे हैं, यहाँ पे यस क्या है तुम्हारा, यस क्या है तुम्हारा, प्रिंटिंग मिस्टेक हो, किलोमीटर पर सेकंड। समझ में आ गया आपको कैसा निकाला है। आप डायरेक्ट ऐसा भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी वैल्यू क्या है, जी की वैल्यू कितनी है आप लिख सकते थे, जी की वैल्यू कितनी है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ कितना है तुम्हारा 6 इंटू 10⁻24 डिवाइडिंग बाय 6400 इंटू 10⁻3। इसकी वैल्यू निकालो, इसकी वैल्यू भी अप्रॉक्सीमेटली कितनी आएंगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये वैल्यू भी सॉल्व करते हैं तो आपको आंसर उतना आएगा अप्रॉक्सीमेटली, है ना। तो कोई भी तरीके से जाओ आंसर विल बी द सेम, अंडरस्टूड। हाँ, तो यहाँ पे क्या है देखो, सैटेलाइट अब बताया तुम्हारे को मैं, क्या होता है जब तुम्हारी फोर्स वेलोसिटी तुम्हारी कम होगी तो क्या हो जाए, तुम्हारा सैटेलाइट तुम्हारा लॉन्च का प्लैनेट तुम्हारा गिर जाएगा। आप कोई ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं और आपकी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 11.2 से कम होगी तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट तुम्हारा नीचे गिर जाएगा, है ना। एग्जैक्ट मैच होती है क्रिटिकल वेलोसिटी के साथ, दैट इज नोन एज क्रिटिकल वेलोसिटी वीसी। तो वहाँ पे क्या सैटेलाइट तुम्हारा रिवॉल्व करेगा, है ना, सीधा नहीं करना पड़ेगा आपको, उसके लिए लॉन्च करने के लिए 2 वे रॉकेट लगता है ना। पहले कंडीशन में क्या करते हैं, अपन उसको ऊपर उठा लिफ्ट करते हैं और उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी देते हैं। तो बाद में ये सब ज़्यादा होगी, समझो वी एच ज़्यादा होगा तो ज़्यादा होती तुम्हारा प्लैनेट क्या होगा तुम्हारा, ये इसके फील्ड के बाहर निकलेगा, फिर बाद में आएगा नहीं। समझ में आ गया। हाँ, अभी वी सी यानी क्या है, द प्लैनेट विल बी एग्जैक्टली रिवॉल्विंग ऑन द सर्कल। अब इसमें क्या है देखो, अभी कुछ क्या है एग्जैक्टली सर्कल में घूम रहा है, ये क्या है वी सी है। अब यहाँ पे √2 फैक्टर है तो यहाँ पे क्या √2 थोड़ा कम होगा तो क्या है तुम्हारा इसका शेप चेंज होगा, ये ऐसा हो जाएगा, इलोंगेट होगा, पर बाद में आएगा, √2 से वैल्यू कम होती है तो बाद में 11.2 से कम होता है तो बाद में आएगा, लेकिन उसका ऑर्बिट क्या होगा, इलिप्टिकल होगा। पर √2 से 11.2 किलोमीटर से ज़्यादा होगा तो वो अपने फील्ड में आएगा नहीं, समझे। हाँ, अंडरस्टूड ना। नेक्स्ट वन देखो, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिया है, लेट मी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज गिवन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, है ना, आपको समझ में आ गया अभी। और आपको याद भी करना है ना, हर बार कैलकुलेट नहीं करना है, आपको याद करना है, सिंपल है 11.2। कैसे याद रखना है, एक कितने बार है, बस बाद में पॉइंट लगा दो, कितने बार एक 1.2, है ना। तो क्या है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। Find the escape velocity on the planets having the mass is twice of the Earth। अभी दूसरे प्लैनेट का निकालना है, देखो अर्थ का दिया है और निकालना किसका अपने को, दूसरे का, जिसका मास कितना है, डबल है ना। Having the mass is twice than the Earth and radius is half of the Earth। उसकी रेडियस कितनी है उसकी, अर्थ से आधी है और मास कितना है उसका, डबल है। तो फॉर्मूला क्या है escape velocity का, बोलिए 2gm/r है क्या, ये है क्या, 2gm/r ये इंटू r और डिवाइड बाय r, है ना। तो इसका मतलब क्या है √2gr, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप और ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहाँ पे ये इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि यहाँ पे दिया क्या है, इन्होंने अपने को मास दिया है, कहाँ दिया देखो, ये अपना अर्थ का है ना। इसको लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ अर्थ का। अभी अगर दूसरे प्लैनेट का है एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट हैविंग द मास, तो मास कितना होगा तुम्हारा दूसरे प्लैनेट का निकाल रहा हूँ मैं, तो क्या है 2
जी तो चेंज होता ही नहीं, जी तो हर वे सेम है. फॉर एवरी प्लैनेट द वैल्यू ऑफ जी विल बी द सेम, विल बी द 6.6 × 10⁻11. इट नेवर चेंज. मास कितना हो गया उसका देखो अभी, मास इज ट्वाइस देन द अर्थ. तो मास कितना हो गया उसका 2m हो गया. मास कितना हो गया उसका 2m. मास क्या होगा, दुगना हो गया उसका. बराबर है. और क्या बोल रहा, रेडियस इज, रेडियस हाफ दैट ऑफ द अर्थ. रेडियस क्या होगी उसकी, कम हो गई. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा r/2. बराबर. हाँ, तो अभी क्या होगा देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट, v ऑफ प्लैनेट ऑफ एस्केप वेलोसिटी इक्वल्स टू 2gm 2 डिवाइडिंग बाय r, और नीचे का 2 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में जाएगा. सही है क्या? हाँ, तुम कुछ भी करो सर, तुम्हारा सही है. हाँ, समझ में आ रहा है क्या आपको? हाँ, गुड. तो vc कितना हो गया, v कितना हो गया फिर 2gm/r, और ये फैक्टर कितना है तुम्हारा 4 टाइम. तो √4 का वैल्यू कितना होता है 2, है ना. तो इसका मतलब कितना हो गया तुम्हारा 2 इन ब्रैकेट ऑफ 2gm/r. पर ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वैल्यू क्या है तुम्हारी, एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ. इसकी वैल्यू कितनी पता है आपको, 11.2. फिर कितना आ गया फिर आपका 2 × 11.2. ये क्या है तुम्हारी एस्केप वेलोसिटी है अर्थ की. तो 2 × कितना हो गया फिर 22.4 किलोमीटर पर सेकंड. यहाँ पे ऑप्शन दिया है क्या, कौन सा दिया है, बी. इसे टिक कर देना है. फिर समझ में आ गया है कैसा करना है. हाँ, बहुत सिंपल था ना. चलो कोई बात नहीं, और अपन एग्जांपल देखेंगे ऐसे. नेक्स्ट देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स अपॉन मास एज. मास का कितना पावर है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितना है, क्या फॉर्मूला, क्या है मास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला बोलो. वी कितना है 2gm/r, है ना. तो इसकी वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी का मास कुछ है क्या, बॉडी का मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, है ना. तो कोई भी बॉडी की दो, छोटा पेन फेंको तुम जोर से, या मिसाइल फेंको जोर से, उतनी स्पीड से फेंकते तो तुम्हारा बाहर जाएगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉडी. बॉडी के मास पे डिपेंड है क्या, नहीं है. तो किसी का भी 0 पावर होता है, तो m⁻0 यानी कितना होता है 1. तो इसका मतलब क्या है, m⁻0 यानी कितना है तुम्हारा यहाँ पे 1. तो कोई भी चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करो तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, तो क्या है आंसर, क्या आएगा तुम्हारा m⁻0. गॉट इट, समझ में आ रहा है क्या. हाँ, गुड. तो नेक्स्ट वाला देखिए, ये विच ऑफ द फॉलोइंग एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट हैज द हाईएस्ट एस्केप वेलोसिटी. हाईएस्ट एस्केप वेलोसिटी किसकी है, ये निकालना पड़ेगा आपको. तो अभी इस पे डिपेंड किस पे करेगा, ये 2 फैक्टर्स पे. कौन से, रेडियस और मास, है ना. तो रेडियस और मास की फॉर्मूला क्या है अपना, v = 2gm/r, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप 2gr, है ना. तो अभी डिपेंड करते हैं तुम्हारे 2 फैक्टर्स पे. तो अभी देखो, तो यहाँ पे आप लोगों को दिया नहीं, लेकिन आपको मालूम होना जरूरी है ना. तो क्या है देखो, तो अर्थ का मास क्या है पता है आपको, 6400, सॉरी 5 × 6 × 10⁻24 किलोग्राम मास. रेडियस पता है 6400 किलोमीटर, है ना. और अर्थ की एक्सेप्ट वेलोसिटी पता है आपको 11.2. मून क्या है, छोटा है, अर्थ से मून का मास बहुत कम है, इसकी एक्सेप्ट वेलोसिटी भी कम होगी. बराबर है. जुपिटर का मास अर्थ से ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा होगी अर्थ से. बराबर है कि नहीं. बट सबसे ज्यादा मास किसका है, सन का है ना. सन के अराउंड कितने प्लैनेट घूमते हैं, प्लूटो तक भी घूमता है ना. प्लूटो भी प्लैनेट नहीं, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट बोलते हैं उसे, वो भी घूमता है अर्थ के अराउंड, है ना. उससे ज़्यादा स्पीड होती तो बाहर निकल जाएगा वो. तो अर्थ की क्या है सबसे ज़्यादा यहाँ पर. कैलकुलेशन नहीं भी करे तो आप इसका बाय डायरेक्टली आपको निकाल सकते हैं. डिपेंड्स अपॉन द ट्रू फैक्टर्स, दैट इज v इज डायरेक्ट इनटू रूट ऑफ m एंड v इज डायरेक्ट इनवर्स इनटू रूट ऑफ r. रेडियस जितनी ज़्यादा उतनी इसकी वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारी, कम. पर उसका कंपेरेटिवली मास बहुत ज़्यादा है. आपको पता होगा शायद सन किससे बना हुआ है, इस गैसेस. कौन से गैसेस उसमें सन में, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस, है ना. हाइड्रोजन और हीलियम. और आपको शायद पता होगा हाइड्रोजन और हीलियम दे आर नोन एज अ लाइटर गैस. क्या है लाइटर गैस है वो, है कि नहीं. लाइटर गैस क्यों कहते हैं उसे,
लाइटर में इस्तेमाल करते हैं बोल के क्या, फिर लाइटर गैस का मतलब क्या है, उसका वजन कम होता है ना। बलून होते हैं क्या, तुम बलून खेले क्या, बलून से खेले, हल्के फूल जो बलून में हीलियम गैस भरते हैं देखो, वो हवा से ऊपर जाता है, इसका मतलब क्या है, उसका क्या है वेट, क्या है उसका वजन, क्या है बहुत कम होता है ना। तो सन किसका बना हुआ है तुम्हारा, मोस्टली हाइड्रोजन एंड हीलियम का। इसका मतलब सन का क्या है तुम्हारा, जो मास जो है उसका बहुत ज़्यादा है, सन का मास क्या है ज़्यादा है ना। तो इसलिए क्या है, इसकी एक्सेस वेलोसिटी क्या होगी सन की ज़्यादा होगी। समझ में आ रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट वाला देखिए, इसके बाद में देखिए अभी, हाउ डज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अफेक्ट्स द एस्केप वेलोसिटी। तो अफेक्ट शेप पे क्या अफेक्ट होगा, शेप यानी मास पे अफेक्ट होता है क्या, शेप पे कुछ अफेक्ट होगा कि देखेंगे अपन क्या बोल रहा है ऑप्शंस। द शेप ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट्स ऑन इट्स एस्केप वेलोसिटी। बॉडी का शेप चेंज होगा क्या, ऑब्जेक्ट जैसे कि तुम जैसे कि प्लेनेट तुम लॉन्च कर रहे है ना, बहुत दूर से करे, उसका शेप टेढ़ा बिंगा हो रहा है, शेप पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा है। चलो, और एंड मोर एरोडायनामिक शेप डिक्रीजेज द एस्केप वेलोसिटी। एरोडायनामिक शेप रहता है तो उसके एस्केप वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है बोल रहा है। ऐसा एरोडायनामिक यानी जैसे कि तुम्हारा जहाँ से कि एयर का रेजिस्टेंस नहीं होगा ऐसे, उसकी वजह से है ना। द मोर एरोडायनामिक शेप्स एंड द मोर इरेगुलर शेप्स, तो इसमें क्या है, द शेप ऑन ऑब्जेक्ट डज नॉट अफेक्ट्स, कोई भी ऑब्जेक्ट का शेप कोई भी रहने दो, एस्केप वेलोसिटी 11.2 से ज़्यादा है तो क्या बाहर ही जाना है उसे, उसे क्या जाना है बाहर ही जाना है उसको। शेप डज नॉट डिपेंड, मास आल्सो डज नॉट डिपेंड। फॉर्मूले में शेप का कुछ आएगा, इट विल बी द क्यूबिकल, इट विल बी द स्फेरिकल, इट विल बी एरोडायनामिक, कुछ आएगा अपने फॉर्मूले में नहीं है। सिर्फ क्या है अपने फॉर्मूले में, VE इक्वल्स टू इनटू GM बाय R। इसका मतलब डिपेंड किस पे कर रहा है तुम्हारा, सिर्फ मास पे और रेडियस पे, शेप पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप। तो सर तुम आप बोलेंगे सर आप रेडियस कैसे निकाले, अपन बताए अपन रेडियस क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं ना। तो शेप तो फ्लैट नहीं होता है आपका, है ना। तो क्या मोस्टली अपन प्लैनेट क्या करते हैं, तुम्हारे मिनिमम एरिया को पाई करने की कोशिश करते हैं, मिनिमम एरिया को पाई करने तुम्हारे मोस्टली स्पेरिकल वे में आते हैं, इसलिए क्या करते हैं अपन, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप। और आर का तुम्हारा सेंटर ऑफ मास होता है ना, एग्जैक्ट रेडियस कोई एग्जैक्ट सेंटर नहीं होता है कोई भी। और इज ऑल्सो नॉट स्पेरिकल, इसे इलिप्टिकल जियोइड फिगर बोलते हैं अपन इसको, है ना, ज्योग्राफी में देखे तो उस अपन आर क्या निकालते हैं, एवरेज वैल्यू निकालते हैं ना, दैट इज डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट इट, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरे बहुत कम क्वेश्चन है क्या आज, ओके लेट वी डिस्कस। कैलकुलेट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द मून्स surface given of the mass and the radius of the moon is given, this one and okay respectively। आपको मास दिया और क्या दिया आपको, जो दिया वो लिखेंगे। तो कितना दिया सरफेस ऑफ मून, सरफेस गिवन मास कितना है, मास ऑफ मून कितना है 7.34 इंटू 10⁻22 kg एंड रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है आपको 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर रिस्पेक्टिवली। तो क्या निकालना है आपको, V एस्केप ऑफ मून, मून की एस्केप वेलोसिटी निकालना है। क्या निकालना है आपको, मून की एस्केप वेलोसिटी। अभी मेरे पास एक आइडिया थी, पर वो आइडिया आपको नहीं करना है, क्यों बोलो। मेरे पास क्या था, ये V इक्वल टू कितना है तुम्हारा 2GR, ये फॉर्मूला था मेरे पास अर्थ के लिए, इसकी वैल्यू मेरे पास थी कितनी है 11.2 बराबर है। अभी मैं क्या करता हूँ, मून का है तो मून की मुझे पता है, मून की ग्रेविटी के अर्थ से 6 गुना कम है ना। तो मैं क्या करता हूँ, मून का करना है मुझे, तो मैं क्या करूँगा डिवाइड बाय 6 करूँगा इसको, तो यहाँ पे क्या है √6 आएगा। सपोज मैंने करना, ऐसा नहीं करना है, बता रहा हूँ मैं आपको। तो कितना आएगा 11.2, √6 की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्सीमेटली 2 इंटू 3 करो इसको, है ना 2 इंटू 3, तो 11.2 और √2 की वैल्यू कितना 1.414 और √3 की वैल्यू 1.732 है ना। इसका दोनों का मल्टीप्लाई करना है, जो भी आंसर आएगा वो आपका रिजल्टेंट होगा। ये भी तरीके से आप निकाल सकते हो, एक तरीका ये है ना। ये क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई करना है और दोनों का रेशियो से डिवाइड करना है। √2 की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा याद रखो, √2 की वैल्यू कितनी होती है तुम्हारी 1.414 एंड √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। यहाँ से आपको ये कैलकुलेट करते हुए आपको यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मिलेगी मून की। वो तो अभी डिनोमिनेटर में डिवीजन में आ रहा है, तो इसका मतलब मून की इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, वेरी सिंपल है ना। तो पर आपको ऐसा नहीं करना है, अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू कैलकुलेट। तो आपको कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, आपको यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपको 2GM/R, ये फॉर्मूला लगेगा है ना। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ
2 एज इट इज रखेंगे। जी की वैल्यू कितना है 6.673, 10 रेशो कितना है -11। मास ऑफ दिया है इसका, मूंग का कितना दिया है इसको 7.34 इंटू 10⁻22 डिवाइडेड बाय आर कितना दिया आपको 1.74 इंटू 10⁻6। तो इसका स्क्वायर रूट निकालना है, बराबर है। इसको क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है। देखो पहले पावर पावर कर लेंगे, फिर बाद में आप क्या करें इसको कैलकुलेट करते बैठो। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे वैल्यू ये 2 इंटू 6.673 इंटू 7.34 इंटू 10⁻11 अब ये +22, यहाँ पे इंडेक्सेस क्या हो गया एडिशन हो गई ना, बराबर है, डिवाइडेड बाय 1.74 और +6 ऊपर आगे क्या हो जाएंगे तुम्हारे -6, सही है। हाँ तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा VC इक्वल्स टू, देखो तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 2.62 इंटू 6.673 इंटू 7.34 इंटू 10 का पावर कितना बन गया हो 11 -6 कितना हो गया -11 + 22 कितना हो गया +11 + 11 -6 कितना बन गया 5 क्या 10⁻5 करेक्ट, डिवाइडिंग बाय 1.74। तो क्या है 10⁻5 इज ऑड नंबर, 10⁻5 क्या है तुम्हारा ऑड नंबर, रूट के बाहर निकलेगा क्या नहीं। तो क्या करना पड़ेगा आपको इवन बनाना पड़ेगा। कैसा बनाओगे, ये तो मल्टीप्लाइड बाय 10 करो या तो फिर डिवाइड बाय 10 करो। मल्टीप्लाइड बाय 10 करो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10⁻6 हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 10 करते हैं तो फिर इसको डिवाइड बाय 10 करते तो क्या है 17.4 नीचे का बन गया 10⁻4 आएगा। तो फिर 10⁻4 है तो अपन 10⁻2 अपन बाहर निकाल सकते हैं, है ना। तो चलो अभी इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अपन सिंपली। देखो तो अभी क्या है तुम्हारा, इसको मल्टीप्लाई करो इतने फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करो, आप पूरा मत करो, है ना। 6.6 लो आ रही ग्रेविटी खाली, तो कितना है 6×6 कितना है तुम्हारा 22 कैरी 1 और 13, इतना ही लेता हूँ, पूरा नहीं करता हूँ। मल्टीप्लाइड बाय 7.34 इंटू इसको क्या करता हूँ मैं 10⁻4 लिखता हूँ और 10 लिखता हूँ और नीचे लिखता हूँ 1.74, चलेगा। 10⁻5 का लिखा मैंने 4 और 1 लिखा, तो 4 लिखता हूँ तो मैं इसके रूट के बाहर के बाद ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 10⁻2 हो जाएगा, है ना। तो 10⁻2 बाहर निकल गया यहाँ पर। अब इसको 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा तुम्हारा 132 हो गया है, बराबर है। 7.34 डिवाइडेड बाय 1.74 तो 132 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है 1.734 डिवाइडिंग बाय 1.74 तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा देखो, तो ये बाहर तो अपना 10⁻2 आ गया है अपना, है ना। और जो भी अपना आंसर आएगा किस में आएगा अपना मीटर पर सेकंड में आएगा, अपना आंसर किस में आएगा मीटर। तो यहाँ पे आंसर किस में आ रहा था अपना किलोमीटर पर सेकंड में आ रहा था, बराबर है। यहाँ पे आंसर आएगा मीटर, बिकॉज सब बोलेंगे सर इसमें तो 10⁻2 आया, वहाँ पे तो कुछ नहीं था, लेकिन वहाँ पे यूनिट भी अलग है ना। दोनों भी तरीके से कर कैलकुलेशन का आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आएगा। तो अभी इसको कैलकुलेट करना है 132 इंटू 7.34 डिवाइड बाय 1.74 कर सकते हैं कैलकुलेट आप। हाँ कैलकुलेट करना है, रूट निकालना है, तो रूट निकालने के बाद में इसकी वैल्यूज आएगी, तो जो कैलकुलेशन कर होता है वो आप कर लो, कर सकते हैं ना, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं मुझे। हाँ चलो कर लीजिए आप, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। हाँ तो फिर आज क्या क्या पढ़े अपने आज के टॉपिक में, आज एस्केप वेलोसिटी क्या है देखें, एस्केप वेलोसिटी के फॉर्मूलेज क्या है देखें, है ना। व्हाट इज एस्केप वेलोसिटी, इट विल बी द 2 gm/r और 2 gr और वैल्यू ऑफ एस्केप 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। ये आज अपन ने देख लिए। हाउ टू डिराइव द एस्केप वेलोसिटी, हाउ टू डिराइव करने के लिए क्या देखे अपन ने, द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर द इक्वल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या थी आपकी 1/2 mv² इक्वल्स टू gm/r, तो mm कैंसिल हो गया, v² इक्वल्स टू कितना का 2 gm/r, ये तुम्हारा फॉर्मूला बन गया, है ना। ये निकाले और g की वैल्यू पता थी आपने को, g की वैल्यू क्या थी तुम्हारी gm/r², ये पता था आपने को, है ना। तो इससे अपन ने उसके वैल्यूज निकाल दिए। और क्या देखे अपन ने आज के टॉपिक में, एस्केप वेलोसिटी देखे कैसा निकालना वो देखे, उसकी वैल्यूज देखे और उसके न्यूमेरिकल्स एग्जांपल्स। इतना ही था आज के टॉपिक में, है ना। इससे अलावा कुछ था क्या आज, नहीं। उसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के लिए अपन को यही फॉर्मूले लगे और कन्वर्शंस था,
है ना, कन्वर्शन क्या था, किलोमीटर का मीटर, मीटर का किलोमीटर भी था। तो आपको मैंने बताया इसके वेलोसिटी तुम्हारे को मैंने दोनों में फॉर्म में बताया, किलोमीटर पर सेकंड आपको सेकंड में बताया और मीटर पर सेकंड में भी आपको मैंने दोनों बताया। इसके अलावा कोई था क्या इस टॉपिक में आज, कुछ डिफिकल्टी कुछ थी क्या? आज का टॉपिक बहुत सिंपल था आज का टॉपिक, है ना। जस्ट देखिए आज के टॉपिक में कोई भी आपको डाउट्स होता है, इज एनी क्यूरी, तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। इफ एनी डाउट यू कैन आस्क विदाउट हेजिटेशंस। Okay, if anyone having doubt today, how was today's topic? It's very simple. Understood each and every bits? Then thank you for today's topic. Have a good day.